Welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session of the chapter Decision Theory. In this session, we'll be seeing decision tree as the part. So this is the new concept. Now, what is a decision tree? A decision tree is a graphical presentation of a decision process involving multiple stages. It indicates all the courses of action, state of nature with associated probabilities and a conditional payoff of a decision problem. A decision node is denoted by a square and a state of nature node is represented by a circle. Usually the decision nodes are numbered using the capital letters A, B, C, ... from the left to the right, and the states of nature nodes as 1, 2, 3 sequentially from left to right. The different courses of action originates as branches from the decision node. At the end of each of these branches, there are states of nature nodes. The state of nature emerge as sub-branches from these nodes. The probability associated with the state of nature and the payoff are shown on these branches. This way of representing a decision problem is called as what? A decision tree. Let us understand how to draw a decision tree by considering a simple example. So, suppose a decision making problem is given as below. Payoff bracket profit table ये दिया हुआ है. So now since this is given, तो एक चीज याद रखेंगे, यहाँ पे मैं पहले एक हेडिंग दे देता हूं as what? Decision tree. एंड डिसीजन ट्री के लिए बेसिक रूल जो है, सो यहाँ पे डिसीजन ट्री का बेसिक रूल देखते हैं. हमने बोला था यहाँ पे कि ये स्क्वायर बॉक्स रहेगा एंड ये जो स्क्वायर बॉक्स है उसको हम लिखेंगे एज व्हाट? ए, एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? डिसीजन नोड. नाउ फ्रॉम दिस डिसीजन नोड यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 एंड ये. सो इधर आ जाएगा एज व्हाट? सर्कल. एंड ये जो सर्कल है, ये सर्कल के अंदर भी राइट इट एज व्हाट? ये सर्कल के लिए मैं लिखूंगा एज 1 एंड व्हाट? 2. तो यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे क्या लिखा? 2. एक बार ये कंडीशन लिखा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं एज व्हाट? A1. ये हो जाएगा A2. एंड फ्रॉम दिस 1 मैं यहाँ पे लिखूंगा, जब ऐसे दो कंडीशंस किए तो मैं लिख सकता हूं इट एज व्हाट? S1 एंड S2. सेम वे यहां पे हो जाएगा S1 एंड व्हाट? S2. एंड एक चीज याद रखना है, इधर ये जो 1 और ये जो 2 है, तो व्हाट इज दिस डिनोटिंग? तो मैं बोलूंगा स्टेट ऑफ नेचर. एंड कहने से ये स्टेट ऑफ नेचर जो है नोड है. सो स्टेट ऑफ नेचर क्या लिखूंगा मैं? नोड. सो ये कंडीशन है और ये कंडीशन. सो दिस इज डिनोटिंग दिस कंडीशन. ये हो गया मेरा डिसीजन नोड. एंड यहाँ पे जैसे मैं ये S1 ये S2 ये लिखा, इधर करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज के वैल्यूज भी आ जाएंगे. सो दिस इज द बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? डिसीजन ट्री. सो अब हमने बोला था यहाँ पे कि स्टार्टिंग मतलब व्हाट इज द प्रोसीजर, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं. ऐसा बोला था. सो आई विल से सपोज अ डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम इज गिवन एज बिलो. बोला पे ऑफ ब्रैकेट प्रॉफिट टेबल, कोर्सेज ऑफ एक्शन एंड स्टेट ऑफ नेचर. फिर दिया हाई डिमांड, लो डिमांड, S1 S2. कोर्सेज ऑफ एक्शन में प्रोड्यूस A1, आउटसोर्स A2, प्रोबेबिलिटी. वी स्टार्ट द डिसीजन ट्री with a decision node drawn as a square. Since there are two courses of action, two branches will emerge from this node. At the end of each of these two branches, a state of nature node is drawn as a circle. From each of this circle, two sub branches showing two states of nature S1 and S2 will emerge. Thus, decision tree will look as below. इसलिए ये जो है ये हो गया मेरा basic representation. And now, once a decision tree is drawn for a given decision problem, the optimum action can be obtained as follows. फिर मैं लिखूंगा starting from the
extreme right end of the decision tree. Compute expected payoff for each course of action and choose the course of action that gives optimum payoff for each of the decision. Proceed backwards to the earlier stage of the decision point. Repeat these two steps till the first decision node is reached. Finally, identify the courses of action to be selected from the beginning to the end of the tree for the entire decision problem as a whole. So यहाँ पे मैं ऐसा बोलूँगा, in order to see ये टेबल, तो मैं पहले ना पे ऑफ टेबल ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे एक एग्जांपल समझने के लिए. सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पे ऑफ टेबल आएगा. पे ऑफ टेबल में स्टेट ऑफ नेचर ये दिया हुआ है, तो लिखता हूँ स्टेट ऑफ क्या आएगा, नेचर. उसके बाद आएगा कोर्सेस ऑफ एक्शन, तो यहाँ पे लिखता हूँ कोर्स ऑफ एक्शन. अच्छा, एक बार ये हो गया, अभी स्टेट ऑफ नेचर में आ जाएगा एज हाई डिमांड एंड इधर आ जाएगा एज व्हाट, लो डिमांड. अच्छा, ये जो हाई डिमांड है इसको मैं लिख दूंगा एज व्हाट, S1. इसको मैं लिख दूंगा एज व्हाट, S2. कोर्स ऑफ एक्शन में मेरा फर्स्ट कंडीशन है प्रोड्यूस्ड, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रोड्यूस्ड है, तो ये हो जाएगा एज व्हाट, A1. आउटसोर्स, तो ये हो जाएगा एज A2. एंड इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एज बाई प्रोबेबिलिटी के वैल्यू. सो अब ये जो हाई डिमांड है इसमें प्रोड्यूस के लिए कंडीशन इज 5000 है, ये 3000 है. उसके बाद है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं एस 4000 एंड यहाँ पे मैं लिखता हूं एस -4000. ये है 0.6, ये है 0.4. सो इतने वैल्यूज दिए. सो विद द हेल्प ऑफ दिस मैं यहाँ पे बोलूंगा कि यहाँ पे व्हेन आई नीड टू ड्रॉ फॉर दिस, तो सबसे पहला कंडीशन आ जाएगा यहाँ पे आई नीड टू ड्रॉ अ डिसीजन नोड एंड कहने से वो डिसीजन नोड को मैं लिखूंगा एज व्हाट, ए. अच्छा, एक बार ये ए लिखा, सो फ्रॉम दिस ए मैं ऐसा लिखूंगा यहाँ से एक नोड एंड यहाँ से एक नोड. अच्छा, जैसे ही ये कंडीशन लिखा यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा एज व्हाट, 2. सो 1 और 2 लिख दिया. इसके बाद मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एज व्हाट, ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा एज व्हाट, A2. ये 1 एंड 2 लिखा. अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, मेरे पास S1 एंड S2 ऐसे दो वैल्यूज है. सो यहाँ पे मैं ऐसा बोलूंगा, ये हो जाएगा S1, ये हो जाएगा S2. सो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा, इसको थोड़ा सा, तो इसको लिखूंगा S1, इसको लिखा जाएगा एज व्हाट, S2. सेम वे ये जो है ये बन जाएगा S1, ये जो है ये बन जाएगा S2. सो जब मैं ये वैल्यू लिखता हूं, अच्छा अब मुझे बताओ ये S1 और S2 लिखा, अब मैं ऐसा बोल सकता हूं यहाँ पे जो वैल्यू है S1 के लिए, अच्छा पहले तो इधर प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 5000. ठीक है, इधर S2 A1 के लिए वैल्यू है 3000, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एज व्हाट, 3000. ये हो जाएगा 0.4. यहाँ पे ये आ जाएगा 0.6, यहाँ पे ये हो जाएगा 0.4. अच्छा, इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, ये है 4000 एंड ये है -4000. सो दिस इज द वे डिसीजन ट्री का जो कंडीशन है ये ड्रॉ होता है. सो अभी ये ड्रॉ हो गया. अब इसके लिए मुझे बोला गया है कि यूजिंग दिस यू नीड टू फाइंड कि ऑप्टिमम डिसीजन के लिए क्या बेटर ऑप्शन है. सो फॉर दिस वी नीड टू फाइंड द EMV. तो मैं यहां पे लिखता हूं EMV फॉर क्या आ जाएगा, तो मैं लिखूंगा A1 एंड व्हाट इज दिस वैल्यू इक्वल टू, तो मैं बोल दूंगा दिस बिकम्स 5000 into 0.6 plus 3000 into 0.4. So 5000 into 0.6, 5000 into 0.6. So इसका वैल्यू हो जाएगा 3000 plus 3000
इंटू 0.4, सो ये हो जाएगा 1200 एंड ये वैल्यू मिलके मुझे देगा 4200. सेम वे विल फाइंड EMV और यहाँ पे मैं लिखूंगा E2, तो ये हो जाएगा कितना 4000 इंटू 0.6 प्लस ये हो जाएगा माइनस 4000 इंटू 0.4. सो 4000 इंटू 0.6 किया तो यहाँ पे मैं लिखता हूं 4000 इंटू 0.6, सो ये हो जाएगा 2400. माइनस 4000 इंटू 0.4 किया, ये 1600 हो जाएगा विथ माइनस साइन, ये प्लस है तो प्लस माइनस क्या आएगा माइनस, ये हो जाएगा 1600, सो ये हो गया 800. अच्छा इधर आया 4200, इधर आया 800, सो ये दो में से कौन सा वैल्यू बड़ा है, सो मैं बोलूंगा 4200. सो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंस एक्शन A1 गिव्स मैक्सिमम पे ऑफ द ऑप्टिमम डिसीजन इज टू क्या बोलूंगा प्रोड्यूस्ड द प्रोडक्ट, क्योंकि A1 जो है वो है प्रोड्यूस के लिए. सो यहाँ पे मैं लिखता हूं सिंस एक्शन A1 has what maximum value, तो मैं लिखता हूं since action A1 gives maximum payoff value equal to 4200, so the best decision is to produce the product. So we'll make a note of this part. I will start with question based on decision tree. So first question is question number 18. Consider the following decision making problem. Payoff table is given. So I'll be writing that table. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ payoff table. फिर यहाँ पे लिखा जाता है as what state of nature आ जाएगा and यहाँ पे आएगा course of action. यहाँ पे ये हो जाएगा S1 S2 S3, ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2 एंड यहाँ पे ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी. सो यहाँ पे S1 के जो वैल्यूज है वो है 25,000, 50,000 एंड इसका प्रोबेबिलिटी है 0.3. उसके बाद है 35,000, 20,000, इसका प्रोबेबिलिटी है 0.4. देन इट इज 40,000, 10,000 एंड इसका प्रोबेबिलिटी है 0.3, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 होना चाहिए. सो यहाँ पे मैं बोलूंगा द फॉलोइंग इज द डिसीजन ट्री. सो आई विल बी प्रिपेयरिंग द डिसीजन ट्री विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा विल बी ड्रॉइंग व्हाट डिसीजन ट्री. सो यहाँ पे सबसे पहले हम जो ड्रॉ करेंगे दैट विल बी एक स्क्वायर बॉक्स एंड इन दिस स्क्वायर बॉक्स विल बी राइटिंग व्हाट A एंड दिस A इज नथिंग बट व्हाट माय डिसीजन नोड. अब इसमें से यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा एज व्हाट सी मेरे पास है ना दो एक्शंस है, 2 courses of actions are there, तो मैं यहाँ से ड्रॉ करूंगा 1 एंड यहाँ से ड्रॉ करूंगा एज व्हाट 2. नाउ दिस 2 courses of action, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एज A1, इधर मैं लिख दूंगा एज व्हाट A2. सो ये जो 2 course of action है, ये 2 course of action से मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा एज व्हाट मेरा नोड है. यहाँ से आई विल बी ड्रॉइंग व्हाट नोड. सो यहाँ पे 1 लिखूंगा और यहाँ पे क्या लिखूंगा 2. नाउ ये जो नोड है मेरा
ये नोड से मेरे स्टेट्स ऑफ नेचर से रहेंगे एंड ये जो स्टेट्स ऑफ नेचर्स है उसमें S1 S2 और क्या है S3. सो आई विल बी ड्रॉइंग ओवर हियर, ये S2 है, ये S1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा S3. सेम वे इधर हो जाएगा S2, ये हो जाएगा S1 एंड ये हो जाएगा व्हाट S3. सो यहाँ पे जब मैं ये कंडीशन लिखता हूं, आई विल बी राइटिंग ओवर हियर S1 S2 S3, सेम वे S1 S2 S3. अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज के वैल्यूज लिखने होंगे. ये है 0.3, ये है 0.4, ये है 0.3, ये हो जाएगा 0.3 0.4 0.3. अब उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज लिखने हैं. सो ये है 25,000 में लिखूंगा, 35,000 है एंड 40,000 है. इधर आ जाएगा 50,000, इधर आ जाएगा 20,000 एंड ये हो जाएगा 10,000. सो इतने वैल्यूज आ गए. तो यहाँ पे ये जो मैंने ड्रॉ किया, तो मैं बोलूंगा ये जो ड्रॉ किया है ये वैल्यूज हो जाएंगे फॉर व्हाट. अभी डिसीजन ट्री रेडी हो गया, अब कैलकुलेट करना होगा EMV के वैल्यूज. सो मैं यहां पे लिखता हूं फॉर A1 EMV इज इक्वल टू, तो अब क्या आएगा. सो मैं बोलूंगा इट इज 25,000 हो जाएगा इंटू 0.3 आ जाएगा प्लस 35,000 बोलूंगा इंटू 0.4 हो जाएगा प्लस 40,000 बोलूंगा इंटू 0.3 हो जाएगा. सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 25,000 इंटू 0.3, ये हो जाएगा 7,500 प्लस 35,000 इंटू 0.4, तो ये हो जाएगा 14,000 प्लस 40,000 इंटू 0.3, तो ये हो जाएगा 12,000 एंड ये सब मिलके इट इज 12,000 प्लस 14,000 हो जाएगा प्लस 7,500. सो ये हो जाएगा 33,500. ये हो गया मेरा फॉर A1. ऐसे ही मुझे ढूंढना है फॉर A2. तो यहां पे लिखता हूं फॉर A2 EMV इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 50,000 इंटू 0.3 प्लस 20,000 इंटू 0.4 प्लस 10,000 इंटू 0.3. सो इट्स 50,000 हो जाएगा इंटू 0.3. सो इसका वैल्यू हो जाएगा 15,000 प्लस अभी आ जाएगा 20,000 इंटू 0.4. सो ये हो जाएगा 8,000 प्लस ये हो जाएगा 10,000 इंटू 0.3. सो ये हो जाएगा 3,000. सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू, अब मैं बोलूंगा इट इज 15,000 है प्लस 8,000 है प्लस 3,000 है. सो इट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 26,000. सो अब ये मेरे दो EMV के वैल्यूज आ गए. नाउ बेस्ड ऑन दिस EMV, तो आई विल से S EMV इज मोर फॉर एक्शन A1. तो यहां पे मैं लिखूंगा सिंस, और S बोल सकता हूं, सिंस EMV फॉर एक्शन A1 इज मोर है, क्योंकि ये देखो 33,500 है और ये 26,000 है. सो EMV फॉर एक्शन A1 is more than action A2. So I will say therefore जो कंडीशन आएगा, the decision is to choose
action A1 with EMV is equal to 33,500. With this question is done. We make a note of this question. Now we start with the next question, that is question number 19. A manager has to make a choice from three available course of action A1, A2 and A3. There are two possible state of nature S1 and S2 with probabilities of occurrence as 0.6 and 0.4 respectively. For the state S1, the payoff for three actions are 25,000, 35,000, 20,000 respectively. While for the state S2, the payoff are 45,000, 50,000, 35,000 respectively. Represent the problem with the help of decision tree and suggest the most preferred decision and corresponding expected value. So यहाँ पे मैं ऐसा बोलूंगा, ये जो इंफॉर्मेशन दिया है उसमें क्लियरली बोला है A1, A2 and A3, मतलब there are three actions and S1 and S2 there are two possible state of nature. तो मैं ना सबसे पहले यहाँ पे प्रिपेयर कर दूंगा पे ऑफ टेबल, क्योंकि एक बार पे ऑफ टेबल रेडी हो जाता है तो विद द हेल्प ऑफ दिस पे ऑफ टेबल हमें जो डिसीजन ट्री का डायग्राम है वो ड्रॉ करने में आसानी हो जाएगी. सो ओवर हियर आई विल राइट स्टेट ऑफ नेचर, ये हो जाएगा S1, ये हो जाएगा S2. यहां पे मैं लिख दूंगा कोर्स ऑफ एक्शन, ये हो जाएगा A1, A2, A3 एंड नीचे यहां पे लिख दूंगा प्रोबेबिलिटी. सो यहां पे वैल्यूज फॉर दोस S1 के एक्शन के वैल्यूज है 25,000 है, 35,000 और 20,000 है. सो 25,000 लिखता हूं, 35,000 है एंड 20,000 है. S2 जो है उसके वैल्यूज है 45,000 है, उसके बाद है 50,000 और 35,000 है. प्रोबेबिलिटी के वैल्यूज है 0.6, 0.4. सो यहां पे ये टेबल ड्रॉ हो गया, दैट इज पे ऑफ टेबल. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस पे ऑफ टेबल विल बी ड्रॉइंग व्हाट, डिसीजन ट्री. एंड डिसीजन ट्री के लिए वी स्टार्ट विथ सबसे बेसिक कंडीशन, दैट इज मेन कंडीशन, दैट इज विथ स्क्वायर बॉक्स. तो ये हो जाएगा ए. अब यहां से मेरे जो भी कोर्सेज ऑफ एक्शन रहेंगे वो यहां से जाएंगे. सो यहाँ पे एक हो गया, ये दो हो गया और ये तीन हो जाएगा. सो यहाँ पे मैं लिखूंगा इट इज 1, इट इज क्या आएगा 2 एंड इट इज क्या आएगा 3. ये तीन मेरे अलग अलग कोर्सेज ऑफ एक्शन हुए. सो नाउ अभी यहां से स्टेट ऑफ नेचर ड्रॉ करेंगे. सो ये कंडीशन हो गया S1 के लिए एंड वैसे ही यहाँ पे ये कंडीशन ड्रॉ हो जाएगा फॉर S2. तो इधर ये जो कंडीशंस है ये आ जाएगा S1 एंड व्हाट S2. तो इधर मैं लिखता हूं ये हो जाएगा S1, ये हो जाएगा S2. अच्छा यहाँ पे इसके प्रोबेबिलिटीज लिख दे, ये है 0.6, ये है 0.4 एंड यहाँ पे आ जाएगा उसका वैल्यू, इसका वैल्यू है 25,000 एंड इसका वैल्यू है 45,000. सेम वे इधर भी ड्रॉ करना होगा. सो सिंस इधर ड्रॉ करना है तो ये वैल्यू ऐसा आएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा, एंड इधर से ड्रॉ करना है तो ये वैल्यू ऐसा ड्रॉ हो जाएगा. सेम वे यहाँ से ड्रॉ करना है तो ये हो जाएगा एंड इधर से ड्रॉ करना है तो यहाँ पे आ जाएगा.
तो since this are the values which you need to draw, तो यहाँ पे ये हो जाएगा S1, ये हो जाएगा S2, इधर मैं लिख दूंगा 0.6, इधर मैं लिख दूंगा 0.4 एंड इधर ये आ जाएगा 35,000 एंड ये आ जाएगा 50,000, इधर ये आ जाएगा 20,000, ये आ जाएगा 35,000, ये हो जाएगा S1, ये हो जाएगा S2, ये हो जाएगा 0.6, ये हो जाएगा 0.4. So this is the way we draw what decision tree. तो ये decision tree draw हो गया. Now with the help of this decision tree we will find the values of EMV. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा EMV for क्या आएगा A1. फिर कैसे इसका वैल्यू आ जाएगा as 25,000 into 0.6 आ जाएगा plus 45,000 into 0.4 आ जाएगा is equal to, फिर वैसे ही आएगा EMV for A2. So ये हो जाएगा 35,000 into 0.6 आ जाएगा plus 45,000 into 0.4 आ जाएगा एंड फिर यहाँ पे आएगा EMV का वैल्यू for A3, ये हो जाएगा 20,000 into 0.6 आ जाएगा प्लस ये हो जाएगा 35,000 into 0.4. दिस इज इक्वल. सब ये वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं. सो नाउ फर्स्ट ये 25,000 into 0.6 है, 25,000 है into 0.6, सो ये हो जाएगा 15,000 प्लस 45,000 है into 0.4 है, so this will become 18,000 and 15,000 plus 18,000 मिलके ये हो जाएगा 33,000. नेक्स्ट है 35,000 into 0.6, so ये हो जाएगा 21,000 प्लस ये हो जाएगा 45,000 into 0.4, so this becomes 18,000. so ये जो है मिलके हो जाएगा 39,000. 20,000 into 0.6, तो ये हो जाएगा 12,000 प्लस ये हो जाएगा 35,000 into 0.4, so this becomes 14,000. so ये हो जाएगा 26,000. so यहाँ पे 33,000, 39,000 and 26,000. so जो हाईएस्ट वैल्यू है इट इज फॉर A2. so यहाँ पे मैं ऐसा बोलूंगा the best decision is to choose A2 with EMV is equal to 39,000. So with this question is done. We make a note of this question. Start with the next question, that is question number 20. Question is, a person has to make a choice of purchasing 100 shares of company A or company B. If the market is high, it will cost him rupees 28,000. If it is fair, it will cost him rupees 25,000. And for a low market, it will cost him rupees 20,000 for company A. While for company B, the corresponding amounts are rupees 27,000, 26,000 and 24,000 respectively for a high, fair and a low market condition. The respective probabilities for this market conditions are 0.2, 0.5 and 0.3 respectively. Draw appropriate decision tree and advise the person about the purchase of shares. So over here, यहाँ पे एक चीज समझना है, we are having company A and company B. So मैं ऐसा बोलूंगा, ये है question number 20. Let A1, A2 be the let A1, A2 आ जाएगा
let A1 comma A2 be the purchasing 100 shares of company A with the choice of purchasing 100 shares for company A और company B. So यहाँ पे कंपनी A लिखा, कंपनी B लिखा. इसके बाद मैं लिखूंगा लेट S1 S2 S3 be the state of nature depending on market situation. That is high, fair, comma low. तो ये आ गया. नाउ बेस्ड ऑन दिस अभी यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे एज व्हाट पे ऑफ टेबल. नाउ पे ऑफ टेबल में आएगा यहाँ पे स्टेट ऑफ नेचर. स्टेट ऑफ नेचर में 3 वैल्यूज, ये हो जाएगा एज व्हाट S1 S2 एंड S3. अच्छा मैंने बता दिया यहाँ पे S1 S2 S3 क्या है. इट्स बेस्ड ऑन हाई, फेयर एंड व्हाट लो मार्केट. एंड इधर आ जाएगा एज कोर्स ऑफ एक्शन. ये हो जाएगा A1 A2. 2 ही कोर्स ऑफ एक्शन है. यहां पे आ जाएगा एज व्हाट प्रोबेबिलिटी. नाउ वैल्यूज आर, ये है 28,000 है, 28,000, 25,000 है, 20,000 है. नेक्स्ट है 27,000, 26,000 है, 24,000 है. करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज के वैल्यूज है विच इज 0.2 है, 0.5 है, 0.3 है. सो पे ऑफ टेबल रेडी हो गया. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस विल बी ड्रॉइंग व्हाट डिसीजन ट्री. सो यहां पे सबसे पहले विल बी ड्रॉइंग व्हाट A, that is decision node. So ये ड्रॉ किया. अच्छा how many course of actions are there? 2. So यहाँ पे so we'll be drawing over here as what A, sorry यहाँ पे लिखेंगे 1 and either we'll be writing this as what 2. So ये 1 and 2 लिख दिया. अब मेरे पास कितने स्टेट ऑफ नेचर है? 3. सो यहां से मैं बोलूंगा सो इधर मैं लिख दूंगा S1 आ जाएगा, इधर आ जाएगा S2, इधर आ जाएगा एज व्हाट S3. सेम वे यहां से ड्रॉ करेंगे. सो ये हो जाएगा एज व्हाट S1. यहां से ड्रॉ किया, ये हो जाएगा एज व्हाट S2. एंड ये हो जाएगा एज व्हाट S3. अब ये S1 S2 S3 लिखा, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज लिखना है. तो इधर आ जाएगा एज व्हाट 28,000, 25,000, 20,000, 27,000 है, 26,000 है एंड 24,000 है.
अच्छा, अब ये S1 की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 0.2, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0.2। इसके जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या लिखूंगा? तो लिखूंगा 0.5। S3 की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ये लिख दूंगा एज 0.3। सो इधर मैं लिख दूंगा एज व्हाट? 0.2, इधर लिख देंगे एज 0.5 और इधर लिख देंगे एज 0.3। नाउ ये हो गया हमारा डिसीजन ट्री एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ EMV। तो EMV फॉर क्या लिखूंगा? A1 दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 28,000 into 0.2 plus 25,000 into 0.5 plus 20,000 into 0.3, this is equal to, and फिर EMV for क्या आ जाएगा? A2 which is equal to, ये हो जाएगा 27,000 into 0.2 आ जाएगा plus 25,000, सॉरी 26,000 है, into 0.2 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 24,000 into 0.3, so this is equal to, so अब वैल्यूज कैलकुलेट करना। so now it is 28,000 आएगा into 0.2, ये हो जाएगा 5,600 प्लस अब आएगा 25,000 into 0.5, so ये हो जाएगा 12,500 प्लस ये हो जाएगा 20,000 into 0.3, so ये हो जाएगा 6,000। सारे वैल्यूज को ऐड करेंगे तो 6,000 प्लस 12,500 प्लस 5,600, so ये हो जाएगा 24,100। एक बार वापस क्रॉस चेक करता हूँ, इट इज 5,600 है प्लस 12,500 है प्लस 6,000, so it's 24,100। अब यहाँ पे सेकेंड के लिए वैल्यू है 27,000 into 0.2, ये हो जाएगा 5,400 प्लस 26,000 into 0.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13,000 प्लस ये हो जाएगा 24,000 into 0.3, तो ये हो जाएगा 7,200। so this value is equal to 7,200 plus 13,000 हो जाएगा प्लस 5,400, so ये हो गया 25,600। so यहाँ पे EMV for A2 is what? 25,600 और ये 24,100, तो ये ज्यादा है, so we say यहाँ पे the best decision is to choose A2 with EMV equal to 25,600. With this question is done. We make a note of this question, and with this we also end this session over here. Please revise the concept which we have seen in this session so that it is easy for us to understand the next concept. Thank you.